Good morning to all of you. Today we are celebrating 115th birth anniversary of the Major Dhyan Chand. It is celebrated as the National Sport Day, and I welcome here our chief guest, Mr. Amit Kandwal, former national football player, and he also played the senior national hockey, Rangaswamy Cup. Respected principal sir, my colleagues, and lovely students. Today I want to share some views about the Major Dhyan Chand. He was born on the 29 August 1905 in Allahabad, UP. He was the greatest hockey player in the history of the sports. Chand played internationally from the 1926 to 1949. He scored 570 goals in 185 matches. The achievement of Major Dhyan Chand, the Indian hockey teams won the 3 Olympic gold medal in the year 1928 in Amsterdam, in 1932 at the Los Angeles, and 1936 in Berlin under the captaincy of the Major Dhyan Chand. In 1956 he retired from the Indian Army, which the rank of the Major. He was honored with the Padma Bhushan award also. Some interesting fact about the Major Dhyan Chand, कि वो कितने महान थे, उनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ. 2-3 चीजें हैं यहाँ पर. He practiced a lot during the late night hours under the moonlight. That's how he got the nickname Chand Moonlight. Another thing, impressed by the Dhyan Chand game, Adolf Hitler offered him the German citizenship and a colonel position in Germany military, which he declined. उस टाइम पे जर्मनी की जो पोजीशन होती थी वो बहुत ही कर्नल की पोजीशन बहुत पावरफुल होती थी, लेकिन ध्यानचंद ने उसे मना कर दिया क्योंकि ही इज ए लॉयल देशभक्त थे. ध्यानचंद Dhyanchand marvelous game played to force the hockey officials in the Netherlands to break his hockey stick to check if there was a magnet or not. उस टाइम पे जो नीदरलैंड में जो उनके साथ हुआ था कि हॉकी स्टिक को ही ब्रेक करके चेक किया गया कि वहां पर कहीं मैग्नेट तो नहीं है. तो इससे इनके महानता का पता चलता है कि वो कितने महान प्लेयर थे. उस टाइम पे जब वो बॉल लेके जाते थे तो लगता था कि उनकी स्टिक से बॉल चिपकी हुई है. उसके बाद लास्ट में द क्रिकेट लीजेंड डॉन ब्रैडमैन मेट द ध्यानचंद एट एडिलेड इन 1935 आफ्टर द वाचिंग हिम टू प्ले. द ब्रैडमैन रिमार्क ही स्कोर्स गोल लाइक ए रन्स इन क्रिकेट. तो he played an important role of the Indian hockey, और उन्होंने इंडियन हॉकी को बहुत कुछ दिया. धीरे धीरे हमारी हॉकी, इंडियन हॉकी उस टाइम पे जो 3 ओलंपिक थे 1940 तक इंडिया का पूरे वर्ल्ड में हॉकी में नाम था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो इनके पास आगे जब देश आजाद हुआ उसके बाद के हॉकी की कंडीशन आप आजकल देख ही रहे हैं. लेकिन अभी थोड़ा सा जो आज की है थोड़ा सा हॉकी टीम उतनी उस लेवल तक अभी तक वो मुकाम को नहीं पहुंच पाई है. सो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चों को भी एक मैसेज देना चाहूँगा कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अस. और सभी को जो भी है जितना भी यहाँ पर मिलता है मौका आगे बढ़ने का, आगे आए, प्रैक्टिस करें, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी बिना प्रैक्टिस के या बिना मेहनत के कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है. तो लास्ट में मैं 2 वर्ड स्वामी विवेकानंद के कहना चाहूँगा. यहाँ पर मैं भारत के नौजवानों को कहना चाहूँगा कि उनको गीता पढ़ने की अपेक्षा फुटबॉल खेलना चाहिए. फुटबॉल खेलने से उनके मस्तिष्क के स्नायु और मजबूत होंगे, उससे गीता उनको और भी अधिक समझ में आएगी. जय हिंद, जय भारत. Present here, Honorable Chief Guest Amit Kandwal, respected Principal Sir, and staff member and dear students. First and foremost, I want to pay my tribute to the hockey legend Dhyan Chand ji on his 115th birth anniversary, and also I want to convey my greetings to all those sports person and sports enthusiasts who convey sports with passion and vigor. As we know, today's point of introduction is fitness. And before I start to discuss more about fitness, I want to make a point here that fitness is no longer a personal choice. In COVID-19 pandemic, इस situation में fitness किसी की personal choice नहीं है.
दैट कि कोई बात नहीं, मैं फिट हो रहा हूँ, नहीं हूँ, मुझे इन्फेक्शन हो गया, सो व्हाट. नो, यू कैन नॉट टेक इट लाइक दिस, बिकॉज इन टुडेज सिचुएशन फिटनेस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी वी हैव टुवर्ड्स आवर फैमिली, टुवर्ड्स आवर सोसाइटी, टुवर्ड्स आवर कम्युनिटी. अगर एक सिंगल पर्सन भी आज के टाइम पे फिट नहीं रहा, अपनी हेल्थ को लेकर जागरूक नहीं रहा, तो ही और शी कैन स्प्रेड दिस इन्फेक्शन टू सेवरल अदर्स. इफ यू रिमेंबर प्रीवियस ईयर इसी टाइम पे ऑन 29th of August 2019 हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक कैंपेन स्टार्ट किया था, फिट इंडिया कैंपेन. द होल फुल पर्पस ऑफ द कैंपेन वाज टू मेक पीपल अवेयर हाउ इम्पोर्टेंट फिटनेस इज. अगर आप देखेंगे तो लास्ट 2 decades में लाइफस्टाइल इश्यूज, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स एक अलार्मिंग रेट से बढ़े हैं, जैसे डायबिटीज 2, टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट स्ट्रोक, हार्ट अटैक, ओस्टियोपोरोसिस, डिप्रेशन, एंजाइटी. ये सब क्या है? दीज ऑल आर लाइफस्टाइल इश्यूज जो हमारे लाइफस्टाइल को प्रॉपरली रिजीम ना करने की वजह से हमें हो जाते हैं. और इंडिया इज हैविंग एपिसेंटर ऑफ दिस आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स. यूनाइटेड स्टेट्स के बाद, ब्राजील के बाद, इंडिया इज वन ऑफ अदर कंट्रीज जो इस प्रॉब्लम से डील कर रहा है. ओबेसिटी इज अगेन वन ऑफ द इशू टू डील विद. Thus, this campaign was started. और अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, केंद्रीय विद्यालय संगठन, तो हम पिछले 2 साल से SBSB नाम का प्रोग्राम इनिशिएट कर रहे हैं, दैट इज स्वस्थ बच्चा स्वस्थ भारत. अंडर दिस प्रोग्राम हम हर साल एक रिपोर्ट कार्ड डेवलप करते हैं बच्चों के लिए, सो दैट कि हम उनका चेक कर सकें, उनका फिजिकल फिटनेस, उनका स्टेमिना, उनकी फिजिकल कैपेबिलिटीज. उनका वेट लिया जाता है हर दूसरे महीने में, उनकी हाइट मेजर की जाती है. दिस इज समथिंग वी वांट टू इंश्योर कि जो हमारे स्टूडेंट हैं वो फिट रहें, उनकी जो फिटनेस हो वो बिल्कुल अपार रहे, एट द पार रहे. ठीक है, सो दैट की फिटनेस की वजह से जो उन्हें लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हों वो मिल सकें. वी एज अ केंद्रीय विद्यालय संगठन एजुकेटर्स एंड फैसिलिटेटर्स, वी आर कमिटेड टू द हेल्थ इश्यूज. हम हेल्थ इश्यूज से लेके बिल्कुल कमिटेड हैं. एंड when we talk about fitness, हम फिटनेस की बात करते हैं, we think we need a gym or we need a long ground to run for. ऐसा नहीं है. इस लॉकडाउन सिचुएशन ने पूरा क्राइटेरिया चेंज कर दिया है फिटनेस को लेके, फिटनेस के इक्विपमेंट्स को लेके, कि आपको बहुत इक्विपमेंट्स चाहिए, आपको जिम चाहिए फिटनेस के लिए. नो. अगर आप WHO की गाइडलाइन देखते हैं तो 30 मिनट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज हर इंडिविजुअल के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बच्चा ही क्यों नहीं है. आपको आधे घंटे की फिटनेस एक्सरसाइज करनी चाहिए, मैसिव नहीं होनी चाहिए. यू कैन स्टार्ट विद स्लो, जैसे आप एक जॉगिंग कर सकते हैं, आप एक ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, आप क्लाइंबिंग कर सकते हैं, एंड यू कैन आप रोपिंग कर सकते हैं. ऑल दो स्मॉल एक्टिविटीज. अगर ज्यादा कुछ नहीं है तो आप स्टेयर्स में चढ़ सकते हैं, आप स्ट्रेच कर सकते हैं. दीज आर some of the very basic exercises जो आप घर में कर सकते हैं इस आइसोलेशन के टाइम पे, जहाँ पे हम एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन फेस कर रहे हैं. आप घर में भी फिट रह सकते हैं. और दूसरा इशू जो मैं एड्रेस करना चाह रही हूँ, दैट इज अ मेंटल हेल्थ इशू. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप देखेंगे एज एन फैसिलिटेटर, एज एन एजुकेटर, एज अ टीचर, केंद्रीय विद्यालय संगठन कमिटेड है अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ को लेकर भी. हम टाइम टू टाइम ऐसे शेड्यूल्ड प्रोग्राम भेजते रहते हैं, जैसे कि कभी ड्राइंग, कोई डांसिंग, कभी सिंगिंग, सो दैट कि बच्चे मोटिवेटेड रहें, उनका जो मेंटल स्ट्रेस है वो पार रहे. दे विल नॉट फेस द मेंटल इश्यूज जो इस पर्टिकुलर फेज के दौरान बच्चे फेस कर सकते हैं. बड़े पर्टिकुलरली पेरेंट्स थिंक करते हैं कि बच्चों को किस तरीके का स्ट्रेस हो सकता है, बट दे कैन कम अक्रॉस मेनी टाइप ऑफ स्ट्रेस. उनका एकेडमिक्स हिंडर हो रहा है, उनकी पढ़ाई हिंडर हो रही है, तो दे में फील द स्ट्रेस. अगर आप देखें तो हम फ्रीडम रन एक प्रोग्राम पिछले 2 हफ्तों से स्टार्ट किया है हमने केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अंडर द CBSE. इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम बच्चों को कह रहे हैं कि वो एक छोटा छोटा रन ले. वी आर नॉट सेइंग कि आप स्ट्रेच में दौड़िए, लंबे लंबे किलोमीटर दौड़िए. आप अपने छत में ये राउंड ले सकते हैं, आप अपने लॉन में ये राउंड ले सकते हैं. यू नीड नॉट टू गो फार, है ना. घर में ही कोई फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं. दैट इज द मेन मोटिव बिहाइंड दिस, कि आप पार्टिसिपेट करें फिजिकल एक्टिविटी में. आप कोई छोटा मोटा स्पोर्ट्स डेवलप कर सकते हैं. स्पोर्ट्स इज नॉट अबाउट फुटबॉल एंड वॉलीबॉल ऑल द टाइम. You can develop small sports activities. डांसिंग कर सकते हैं आप, ठीक है, छोटे छोटे आप स्टेयर्स चढ़ सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं. These all can include. आप मेंटल गेम खेल सकते हैं अपने मेंटल लेवल को स्ट्रेस आउट करने के लिए. आप लूडो खेलिए, आप चेस खेलिए. Involve yourself in such activities. Keep yourself fit. This is a time we can best do for our country is to keep ourselves fit. With this simple note, I ended my speech. I want you, all of you, a healthy and fit condition to prevail. Thank you so much.
center of your heart is the center of the universe. Go to that center and release positive vibration for the well-being of the humanity. At this time, world needs huge positive energy to fight against the negative forces. That is nowadays coronavirus crisis. Apart from this, first of all, congrats for Happy National Sports Day as celebrating the birthday of Major Dhyan Chand, the wizard of our country. A very safe and fantastic morning to all of you. I am Vaibhav Bharti, a member of KVN's KVIT Imprimacy, wants to introduce about sports, ethical importance of sports, exercise or yoga against COVID-19 crisis. This crisis had engulfed the entire human race for past 5 months. We have been watching the concerned news about coronavirus spreading across the world. Till I know, science has not able to find a proper remedy for coronavirus and no has been developed yet. In such a situation, it is natural to worry. For the past few days, it is very important for every Indian to remain aware and alert. For a developing country like ours with a great population, the growing challenge of coronavirus is not a normal situation. Or as we all know, health is our wealth. So to maintain this health, we have to perform sports activities. As Nelson Mandela also says, sports has the power to change the world. It has the power to inspire. It has the power to unite people in a way that little else does. And as the numbers of coronavirus affected patients is increasing day by day and the lockdown seems inevitable, people are getting anxious and depressed. The pandemic has made it really difficult to de-stress our minds and feel free or happy. In this case, sports can be therapeutic. Practicing it every day control our mind. According to a study conducted at Harvard Medical School, practicing sports, exercise or yoga, asana, pranayam works by modulating stress and physical response systems. This leads to a reduction in heart rate and a healthier level of blood pressure with oxygen. Sports have shooting effects and they can flush out negative thinking linked to depression and anxiety. But nowadays, alternative problem is that we are not go to stadiums, parks and ground due to COVID-19 situation. So at this time, instead of outdoor games, we can play indoor games such as chess, ludo and other games to reduce our stress and do different kinds of yoga, practicing asana, pranayama, etc. At last, I can say only we are humans and our willpower have too much energy, positive vibrations to beat any kind of negative problems. However, it is coronavirus or any kind of tragedy. So stay safe, stay alert. Thank you. Good morning, viewers. Respected chief guest of the day, Mr. Amit Khandpal, all the staff members and dear children. Today is 29th of August 2020 and this day is celebrated as National Sports Day because of the date of birth of Major Dhyan Chand. मेजर ध्यानचंद, जिनको आप जानते हैं, एक प्रसिद्ध, विश्व में प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी के रूप में, और आज उनका जन्मदिन है 29 अगस्त और इसी वजह से हमारा देश इसको राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है। अगर हम बात करें मेजर ध्यानचंद जी की, तो उनका जन्म आज ही के दिन 29 अगस्त 1905 में इलाहाबाद में हुआ था और वे एक प्रसिद्ध ओलंपियन हैं। जब वो मैदान में उतरते थे तो मानो उनकी जो गेंद होती थी हॉकी की, उनकी स्टिक के साथ में चिपक जाती थी। तो लोगों को ताज्जुब होता था कि कहीं इस हॉकी में कोई जादू तो नहीं है या फिर इसके अंदर मैग्नेट तो नहीं लगा है, चुंबक तो नहीं लगा है, क्यों ये बॉल उनके स्टिक के साथ में चिपक जाती थी। तो एक बार ये तो ऐसी घटना है कि इनकी स्टिक को तोड़ के देखा गया
क्या है इसके अंदर आज, जिसकी वजह से बॉल इनकी स्टिक के साथ में ही चिपकी रहती है। ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेना एक बहुत बड़ी बात होती है और इनके एक हॉकी प्लेयर होने के दौरान 3 बार भारत को ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल मिला। एक 1928, दूसरा 1932 और तीसरा 1936। 1936 जब ये ओलंपिक्स टीम में भारत ने गोल्ड मेडल जीता तो उस समय मेजर ध्यानचंद जी इसके कप्तान थे, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। तो शायद सारा देश आज इस दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है। अब मैं आज का जो मुख्य विषय है खेल कूद और उसका महत्व, इस पर आपको बताना चाहूँगा और इसको मैं शुरू करूँगा एक उदाहरण के साथ में। अभी कुछ दिन पहले जब ये कोरोना काल शुरू हुआ तो मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया कि आपकी गाड़ी काफ़ी दिनों से एक जगह पर खड़ी होगी तो उसको चालू हालत में रखने के लिए उसको 15 मिनट तक चलाए रखें, जिससे कि वो फिर चलने की कंडीशन में आ जाए। इसको हम अपने शरीर से जोड़ते हैं। जब एक गाड़ी कुछ समय तक, महीने भर, 2 महीने भर या फिर 3 महीने तक खड़ी रह जाती है तो फिर वो आसानी से स्टार्ट नहीं हो पाती और ऐसा ही हमारा शरीर भी है। अब मैं बच्चों से ये जानना चाहूँगा कि हम खेलते क्यों हैं? तो बच्चों का जवाब स्वाभाविक रूप में ये होगा कि इसमें हमको मज़ा आता है, इसमें हमको आनंद आता है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि इंटरेस्ट की वजह से, एंटरटेनमेंट की तरह से हम खेलते हैं। तो हमारा पहला उद्देश्य खेलने का हो जाता है कि इससे हमको आनंद प्राप्त हो। पर हमने कभी ये नहीं सोचा कि खेलना क्यों जरूरी है। हमारा शरीर भी किसी मशीन की तरह से है, इसमें भी पुर्जे हैं, जैसे एक साइकिल में होते हैं, एक गाड़ी के अंदर होते हैं, और इनको अगर हम चालू हालत में नहीं रखेंगे तो कुछ समय बाद काम करना बंद कर देते हैं। मैंने पहले भी बच्चों को, जब हम इससे पहले स्पोर्ट्स के बारे में कभी बात करते हैं तो ये बताया था कि अगर हम अपनी साइकिल को काफ़ी दिनों तक एक कोने में रख दें तो उसके बाद उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है, वो ठीक से नहीं चल पाती है। इसी प्रकार से हमारा शरीर भी है। तो खेलने का एक जो हमारा उद्देश्य होता है वो तो आनंद प्राप्त करना। खेलने से हमको आनंद आता है, मजा आता है। फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, दूसरे खेल खेलते हैं, तो हमारा उद्देश्य मुख्य तौर पर हो जाता है कि हमें इससे खुशी मिलती है, हमको इससे आनंद मिलता है। परंतु इससे बड़ा महत्वपूर्ण उद्देश्य खेलने का है अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त रखना। अगर हम अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त नहीं रखते हैं तो ये काम करना बंद कर देता है। अब किस तरह से हम अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त रख सकते हैं? खेल कूद, जिसको गेम्स एंड स्पोर्ट्स बोलते हैं। इसमें आपने देखा होगा कि जब भी हमारे इस तरह के कोई कॉम्पिटिशन्स होते हैं, रीजनल लेवल पर, स्कूल लेवल पर, या हम नेशनल अपना स्कूल का स्पोर्ट्स डे मनाते हैं, तो उसमें दौड़ने का भी कंपटीशन होता है, एक पैदल चलने का भी कंपटीशन होता है। तो मैं बच्चों को बताना चाहूँगा कि अगर हम चलते हैं, तेजी से चलते हुए एक दूरी तय करते हैं, 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, तो ये भी एक प्रकार का हमारे शरीर को एनर्जाइज करने का एक तरीका है, शरीर को एक्टिव बनाने का तरीका है। और जब हम दौड़ते हैं कुछ दूरी तक, यानी लगभग 1 किलोमीटर कम से कम, तो इससे भी हमारे शरीर में जो हमारे जोड़ होते हैं, हमारे जो अंग होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो हमको दौड़ना चाहिए। अभी बच्चों को एक कार्यक्रम के लिए कहा गया, रन फॉर फ्रीडम। सभी बच्चों को एक मैसेज भेजा गया कि सब बच्चे अपनी अपनी जगह पर, जहाँ आप लोग रह रहे हैं, तो एक दूरी तय कीजिए और बताइए कि कितना किलोमीटर या कितनी दूर तक आप उसमें दौड़े, और उसका रिकॉर्ड
अपने अपने क्लास टीचर्स को आप लोग भेज रहे हैं। तो ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। असल में जो हमको ये एक दिन का एक एग्जाम्पल देने के लिए कहा गया है, इसको एक दिन तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि रोज थोड़ा थोड़ा, चाहे आप पैदल चलें, केवल वॉकिंग करें, चाहे कुछ दूरी तक जो है वो दौड़ें, इससे आपका शरीर फिट रहेगा। तो अब बच्चों को अगर मैं खेल के महत्व की बात करूं, तो पहला उद्देश्य तो इसका निश्चित तौर से जो है बच्चे कहेंगे कि हम इससे आनंद लेते हैं, इससे हमको खुशी मिलती है। ठीक है, ये हमारा बेसिक उद्देश्य है। लेकिन अगर हम शरीर को एक मशीन के तौर पर देखें, तो खेलना कूदना इसलिए महत्वपूर्ण है कि इससे हमारा शरीर एक्टिव बना रहता है, इसमें एनर्जी आती है और हम पूरे दिन जो है स्फूर्तिवान रह सकते हैं, यानी पूरे दिन जो है एक्टिव रह सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो खेल में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, खेलने में जिनकी रुचि नहीं है, बाकी बच्चे अगर खेल रहे होते हैं तो वो बच्चे जो है किस मैदान के किसी कोने में बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद उनका टीचिंग का पीरियड होता है या पढ़ने का पीरियड होता है, वो क्लास में आते हैं, तो जो बच्चे मैदान में खेल रहे होते हैं उनमें एक एनर्जी भरी होती है और वो क्लास में भी चुस्त दुरुस्त दिखते हैं, यानी एक्टिव दिखते हैं। और जो बच्चा नहीं खेला, मैदान के कोने में बैठा था, वो बिल्कुल उदास सा, आलसी सा दिखने लगता है और उसका मन पढ़ाई में भी नहीं लगता है। इसका मतलब है हम अगर अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं खेलने के द्वारा, खेल के द्वारा, दौड़ने के द्वारा, चलने के द्वारा, तो इससे हमारे अंदर एक शक्ति रहती है, एक स्फूर्ति रहती है, जो दिन भर हमको एक्टिव बनाए रखती है। तो हर किसी व्यक्ति को किसी न किसी रूप में इस शरीर को एक शक्ति प्रदान करनी चाहिए। आपने सुना होगा योग या योगा जिसको हम बोलते हैं, इस पर भी पूरे विश्व में इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि हर व्यक्ति को योगा करना चाहिए। वो खेलकूद का एक अंग भले ही ना हो, लेकिन अपने शरीर को स्वस्थ रखने का सबसे बड़ा माध्यम पूरे विश्व में आज हो गया है। सभी लोग धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ रहे हैं और हर कोई महसूस करता है कि यदि वो आधा घंटा, 1 घंटा रोज योगा करता है, उसकी छोटी छोटी सिंपल से एक्सरसाइजेस करता है, प्राणायाम हम जिसको बोलते हैं, जिसमें भस्त्रिका, अनुलोम विलोम और उद्गीत जिसमें आप ओम का स्वर निकालते हैं, इन डिफरेंट एक्सरसाइजेस को, उसमें कुछ सूक्ष्म व्यायाम भी कहलाते हैं। जैसे हम हाथों को हिलाते हैं या फिर अपने कंधों को घुमाते हैं, छोटे छोटे कमर को इस तरह से रोटेट करते हैं। तो छोटे छोटे एक्सरसाइजेस यदि हम करते हैं तो उससे भी हमारा शरीर रिजुविनेट होता है, यानी उसमें दोबारा से शक्ति आती है। तो कुल मिलाकर देखें तो खेलकूद हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इससे ये एक गाड़ी रूपी हमारा जो शरीर है, एक साइकिल रूपी जो हमारा शरीर है, एक कार रूपी जो हमारा शरीर है, इसके पुर्जे चलते फिरते रहेंगे, इनके पुर्जों में जंक नहीं लगेगा। और यदि हम खेलेंगे कूदेंगे नहीं तो कुछ समय के बाद में जैसे साइकिल में जंक लग जाता है और वो ठीक से काम नहीं कर पाती, तो हमारा शरीर भी, हमारे शरीर के जोड़ वो जाम हो जाएंगे, हम कोई भी क्रिया को ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे, हम उदास से दिखेंगे, आलसी दिखेंगे। और यदि हमको अपने आप को स्वस्थ रखना है और एक एनर्जी से भरपूर रखना है, तो रोज हमें कुछ न थोड़े समय तक जरूर खेलना चाहिए। और इसमें विशेषकर वो खेल जो कि हम बाहर खेलते हैं। आप जानते हैं बच्चों की 2 किस्म के खेल होते हैं, एक इंडोर और एक आउटडोर। आउटडोर में फिजिकल एक्टिविटी होती है, हमारे शरीर की एक्टिविटी होती है, हमारा शरीर उसमें भाग लेता है। और जो इंडोर गेम्स आप जानते हैं उसमें चेस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडोर एक्टिविटी है। आप कहते हैं कि उसमें एक्सरसाइज नहीं हो रही है, तो मैं आपको बता दूं कि उसमें भी एक्सरसाइज होती है। वो फिजिकल नहीं होती है बल्कि मेंटल होती है। तब हमारा माइंड
उसको एक्सरसाइज मिलती है और हमारा माइंड जो है उसमें, क्योंकि पूरी तरह से डिवोटेड होता है, पूरी तरह से कंसंट्रेटेड होता है, तो हमारा मस्तिष्क तेज होता है, तो उससे भी एक्सरसाइज होती है। इसलिए जो है इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, हॉकी खेलना, मैदान में दौड़ना, कूदना, रस्सी कूदना, जंप करना, जितनी भी एक्टिविटीज हैं आउटडोर में, यदि हम उनको हमेशा करते हैं तो हमारे शरीर के सारे जोड़ खुले हुए रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। इनमें एक, आपको मालूम है, हमारे जो जोड़ होते हैं उनमें एक किस्म का तरल होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, जिससे कि वो जोड़ हमेशा फ्रीली चलते हैं। और यदि हम इनएक्टिव हो जाते हैं, बहुत कम एक्टिविटी पूरे दिन में करते हैं, चलते नहीं है, दौड़ते नहीं है, खेलते नहीं है, तो ये फ्लूइड कम हो जाता है, यानी जो तरल पदार्थ होता है हमारे जोड़ों में वो कम हो जाता है। और हमारे जो जोड़ हैं उनमें धीरे धीरे जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ने लगती है तो वो उनके जोड़ों में दर्द होने लगता है, वो चल नहीं पाते हैं, वो खड़े नहीं हो पाते हैं, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते हैं। और यही जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनमें अक्सर ये शिकायत देखी जाती है। इसलिए बचपन से ही आदत डालिए कि अपने शरीर को हमेशा गतिमान रखिए, चलते रहिए, एक्टिव रहिए। तो अंत में आपको मैं यही बताना चाहूँगा कि खेल कूद अपने शरीर को फिट रखने का एक माध्यम है। हमें रोज कुछ ना कुछ खेल खेलना चाहिए। जैसे लड़कियां रस्सी कूदती है, बहुत अच्छी एक्टिविटी है। कुछ लोग तैरते हैं, स्विमिंग करते हैं, बहुत अच्छी एक्टिविटी है, जिससे कि हमारे पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है। फुटबॉल खेलते हैं आप, उसमें दौड़ते भी हैं, कूदते भी हैं, सब काम करते हैं, उससे भी हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, एक लचीलापन मिलता है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, और ये हमको स्वस्थ रखती है। और जब व्यक्ति स्वस्थ होता है उसका हर चीज में मन लगता है, वो खुश रहता है। और यदि जो व्यक्ति इनएक्टिव रहता है, यानी निष्क्रिय रहता है, चलना फिरना कम करता है, खेल कूद कम करता है, तो वो हमेशा उदास सा दिखाई देता है। तो उससे हमको बचना है। और बचपन से ही आप एक आदत डालिए कि हमेशा रोज ना रोज किसी न किसी रूप में हमारे शरीर को, अपने शरीर को एक्टिव रखना है। आपने सुना होगा, इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, एक कहावत है, हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। आप स्टूडेंट है, आपका मस्तिष्क जो है वो तेज होना चाहिए। तो क्या कहा गया अभी, हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी, यानी आपका शरीर स्वस्थ है तभी आपका दिमाग भी स्वस्थ होगा, तभी आप पढ़ाई कर पाएंगे, तभी आप पढ़ाई में आगे बढ़ पाएंगे। खेल कूद, हमने इसके दो उद्देश्य बताए। पहला, मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। दूसरा, अपने बॉडी को फिजिकली फिट रखने के लिए। और इसके अलावा तीसरा एक इम्पॉर्टेंट इसका एस्पेक्ट है, इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, गोल है, उद्देश्य है, और वो है खेल कूद को अपने करियर के तौर पर चुनना। बहुत सारे नाम आपने सुने हैं, सचिन तेंदुलकर को आप अच्छी तरह से जानते हैं, कपिल देव को आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसी तरह से ध्यानचंद जी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, उनको आप जानते हैं। इससे इनको लाखों करोड़ों रुपया कमाने का मौका मिलता है। यानी हम जीवन में जो करियर कहते हैं उसके तौर पर भी यदि हमारे अंदर प्रतिभा है, स्किल है, किसी खेल को हम अच्छी तरह से खेल सकते हैं और उसमें खूब मेहनत करते हैं, तो एक दिन अपने जिले का खिलाड़ी बन सकते हैं। और मेहनत करते हैं तो देश का खिलाड़ी बन सकते हैं, और उससे भी ज़्यादा मेहनत करते हैं। जैसे बबीता फोगाट के बारे में आपने सुना, ओलंपिक में उसने कुश्ती में गोल्ड मेडल जीता। तो आपने उनकी एक मूवी देखी होगी, क्या नाम था उस मूवी का, बबीता फोगाट की, इसमें मैं भूल रहा हूँ। तो उसमें दिखाया गया है किस तरह से उसने बचपन से बहुत ज़्यादा मेहनत करके एक अच्छी कुश्तीबाज बनी, एक रेसलर बनी, और अंत में इंटरनेशनल लेवल पर उसने गोल्ड मेडल जीता।
तो जब भी कोई हम इंटरनेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल वगैरह जीतते हैं, दूसरे मेडल्स जीतते हैं, तो हमको लाखों करोड़ों में उसका इनाम मिलता है। आप जानते हैं कि आज के जो क्रिकेटर्स हैं नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के, उनको लाखों करोड़ों रुपया मिलता है। तो खेल का तीसरा उद्देश्य हो जाता है कि हम इसको अपने करियर के रूप में चुनें। तो इस तरह से 3 फायदे हमको खेलने के हैं। पहला फायदा हमारा मनोरंजन होता है, जो कि बच्चों का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। वो खेलते हैं इसलिए नहीं कि हमारी बॉडी फिट रहेगी, वो खेलते हैं क्योंकि इससे उनको मजा मिलता है। तो एंटरटेनमेंट या मनोरंजन इसका पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है अपने बॉडी को फिट रखना है। तो अब से आप दूसरे जो ऑब्जेक्टिव है इसका दूसरा, अपने बॉडी को फिट रखने का, इसको भी दिमाग में रखेंगे। जब आप खेल रहे होंगे तो ये जरूर सोचेंगे कि मैं अपने बॉडी को एक्टिव बना रहा हूँ, फुल ऑफ एनर्जी बना रहा हूँ। और तीसरा, यदि आप में कोई स्किल है किसी भी पर्टिकुलर गेम में, दौड़ने में, फुटबॉल में, क्रिकेट में, चेस में, स्विमिंग में, साइकिलिंग में, तो आप उसको उसमें खूब मेहनत करके, जैसे मैंने आपको बताया, डिस्ट्रिक्ट लेवल का खिलाड़ी बन जाएंगे, स्टेट लेवल के खिलाड़ी बन जाएंगे, नेशनल लेवल के खिलाड़ी बन जाएंगे, इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी बन जाएंगे। तो तब आपका वो करियर हो जाएगा। तो ये 3 उद्देश्य याद रखने हैं। खेलना कूदना किस लिए जरूरी? पहला, मनोरंजन के लिए। दूसरा, अपने बॉडी को फिट रखने के लिए। तीसरा, इसको हम अपने करियर के रूप में भी चुन सकते हैं। तो मेजर ध्यानचंद जी को याद करने के लिए हमारा देश आज राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मना रहा है। और इसमें जो मुख्य कार्यक्रम रखा गया है वो दौड़ने का, यानी पहले तो हम स्कूल में ही इस तरह की दौड़ कराया करते थे, परंतु अभी क्योंकि ये कोविड-19 चल रहा है, कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है, तो हम अपने घरों में ही जितना हो सके उतनी दूरी को तय करेंगे दौड़कर, और अपने शरीर को फिट रखेंगे। ये केवल एक एग्जाम्पल है एक दिन का, लेकिन ये आपको ये बताने के लिए कहा गया है कि आप ऐसा रोज करें। हर दिन आप थोड़े समय तक खेलें, हर दिन आप थोड़े समय तक दौड़ें, कोई भी एक्टिविटी जिससे कि हमारा शरीर जो है वो गतिमान रहे, चलता रहे, तो हम अपने बॉडी को फिट रखेंगे और अपने माइंड को भी उसके साथ में फिट रखेंगे। तभी हम, जो हमारा मुख्य उद्देश्य होता है पढ़ाई करने का, बच्चों का मुख्य उद्देश्य होता है पढ़ने का, उसमें भी आगे बढ़ सकें और जीवन भर हमारा शरीर स्वस्थ रहे। तो ये है कि खेल कूद का क्या महत्व है। तो आज हम मेजर ध्यानचंद जी को, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी थे और सारा विश्व उनको जानता है, जैसे ब्रैडमैन के बारे में आपने सुना होगा कि वो विश्व में बहुत अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं। मोहम्मद अली के बारे में आप जानते हैं कि बहुत अच्छे बॉक्सर थे। तो इस तरह से ध्यानचंद जी को भी पूरा देश, पूरा विश्व एक हॉकी उत्कृष्ट सुप्रीम हॉकी प्लेयर के रूप में जानता है। और हमारा देश उस दिन उनको याद करने के लिए, उनको एक तरह से आदर सम्मान देने के लिए आज के दिन को, यानी 29 अगस्त, जो कि उनका जन्मदिन है, 1905 में मैंने आपको बताया उनका जन्म हुआ था, तो उनके जन्मदिन के अवसर पर उनको याद करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए राष्ट्रीय खेल दिवस मनाता है। तो आप सभी को शुभकामनाएं कि आप हमेशा खेल कूद में भाग लें, अपने शरीर को हमेशा स्वस्थ रखें। यदि आप निष्क्रिय रहेंगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। यदि आपका शरीर हमेशा चलता फिरता रहेगा, आप खेलते कूदते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, तैरते रहेंगे, तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो आपको मैं शुभकामना देता हूँ कि आप इस बात के महत्व को समझें कि खेल कूद हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें इसको मन लगाकर करना चाहिए, तो उसके उद्देश्यों को याद रखना चाहिए और अपने शरीर को हम स्वस्थ रखें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। A very good morning to all of you, respected principal sir, teachers and my dear students. First of all, I would like to thank principal sir of KB Mirthi and organizer of this webinar on National Sports Day for inviting me
as a chief guest and for giving me an opportunity to share my views with you. But before starting my views, I would like to introduce you myself, Amit Kandpal. I am a physical education teacher in Uttarakhand government. I have done my Master of Philosophy MPhil in physical education from Jivaji University, Gwalior. I have represented Uttarakhand in senior national hockey, also known as Rangaswamy Cup. I have represented Uttarakhand in football at different levels of nationals. I have represented Kumaon University in football. I have represented Jivaji University in football and hockey. And the most important thing which I want to share is my schooling is also from KV. I studied in Kendriya Vidyalaya Ranikhet, and it's my pleasure to join this webinar with KVS Mirthi family. Dear students, as we all know that today we are celebrating the birth anniversary of Major Dhyan Chand as the National Sports Day. Earlier, Mr. Neeraj told you some of the interesting facts about Mr. Dhyan Chand. 2-3 facts I want to add for your knowledge. Major Dhyan Chand is regarded as nation's greatest hockey player of all time. He is popularly known as the Wizard for his magical touch, control and creativity and extraordinary goal scoring ability. He got the third highest civilian honor, Padma Bhushan, in 1956. Indian government also provide one award in the field of sports as Dhyan Chand Award. He died in 1979. At that time, Indian Postal Department issued a stamp in his honor. One interesting fact which Mr. Neeraj also said, when Dhyan Chand played in Berlin, then Hitler got admired and asked him to join his team, his national team. At that time, Mr. Dhyan Chand said, it is not the duty of the nation to do for his citizen, but it is the duty of the citizen to do something for his country. That is the great thought of the great hockey player. We salute him on his birth anniversary. Now, I am coming to the next point, or I want to bring your concern towards the significance of National Sports Day. Dear all, sports is now not a specialization. It is now become the necessity of everyone. Our government is also emphasizing more and more efforts of making new policies to make it a movement. This year, government has launched Fit India movement. And the motto behind this is every individual of our country should participate in some type of sports activity. It can be any type of sports activity. Either you jog or you do yoga, pranayam, walk or any other sports activity. When we all do some type of sports activity, what happens?
the individual become fit. And if the individual of our country became fit, then our country will automatically become fit. For example, if you see the medal tally of Olympic, you will see America in first, China in second, Japan in third, Germany in fourth, UK fifth position, and not in one Olympic, in every Olympic. Why? Because they know the importance of sports. Every individual in these countries give time to sports every day. It is in their schedule of daily life. So, if you want to see your country in the topmost, you have to be fit. You have to give your time towards some type of sports activity. Next thing, now in our country, sports is gaining its popularity as a separate profession. Earlier people said, you must know, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब. This scenario is now getting changed. With the expansion of education facilities in our country, more and more young people are taking sports as a daily features of their life. Now sports is also have much value than before. The individuals who took sports as a profession are earning good money, and some elite sportsmen had become big brands, not in our country but in the world, like Virat Kohli, Sachin Tendulkar, Saina Nehwal, PV Sandhu, and there are lot many sportsmen. Sports has a great contribution towards the nation. Sports also provide a platform for nurturing the spirit of national integration, crossing boundaries of language, traditions, and regions of the country. For example, when you go for a KVS National, you will see all the sportsmen of all the states came under one roof. They came to know about each other. They came to know about each other's culture, fooding habits, day-to-day life, their likes and their dislikes. So at that particular point, we became one. Or you will see in India, any Indian team, players are from different states in one team. So sports helps in making bringing high the spirit of national integration. Sports promote social harmony and discipline. It is the need of every citizen irrespective of age and sex. By regularly participating in sports activity, the nation is made healthy, fit and strong. Sports are an integrating force for any nation. It promotes peace and understanding, unity and integrity. Sports break the barriers of caste, color and creed. It builds love, friendship and trust. It helps at encouraging and nurturing the talent of the youth of our country. At last, I want to say, a fit nation is an asset and weak nation is a liability. So, dear all, these are my thoughts that I want to share with you all on this auspicious day. And you must promise me that you will share my message with your friends and family to contribute by participating in some type of sports activity as a national duty.
Once again, thanks for inviting me. Have a great day ahead. Jai Hind, Jai Bharat.